السلام علیکم ناظرین، تو کیسے ہو آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ بخیریت ہوں گے۔ آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں کلاس 12 کا اردو، جو تیسرا چیپٹر ہے، جس کے مصنف سلیمان ندوی ہے۔ یہ بھی ایک مضمون ہے۔ یہ جو ہے یہ مضمون ہم بتائے تھے آپ کو کہ کئی طریقے کے ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک مضمون ہے۔ اس مضمون کا نام ہے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، اور یہ ایک علمی مضمون ہے کیونکہ اس کے اندر ہم لوگ کچھ بارے میں جانیں گے۔ دیکھیے، علمی مضمون جس کے میں ہمیں علم حاصل ہو، جس کو پڑھنے کے بعد اسے علمی مضمون کہتے ہیں، اسی لیے یہ علمی مضمون ہے، اور اس کے مصنف ہے سلیمان ندوی۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ سلیمان ندوی کے بارے میں جانیں گے، پھر اس کے بعد وہ جو ہے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، اس کا وہ جو اتنا لمبا نام دیکھنے میں لگ رہا ہے، وہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، پر کوئی بات نہیں، ہم ہے نا، ڈیفیکلٹ ہے تو ہم اچھے سے بتا دیں گے، آپ کو سمجھا دیں گے۔ ایسے سمجھائیں گے نا کہ آپ سوال جواب سب خود اپنے سے ہی لگا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں تو ہم سوال جواب بھی آپ اس کا ایک ویڈیو بنا دیں گے الگ سے، ٹھیک۔ تو سلیمان ندوی کے بارے میں ہم کچھ اپنے کاپی میں لکھے ہوئے اس کے جو میں امپورٹنٹ ٹاپک ہیں، تو چلیے ہم اپنے کاپی میں دیکھتے ہیں آخر ہے کیا، ان کے زندگی کے بارے میں کچھ جانیں گے، تو چلیے دیکھتے ہیں۔ ہاں، تو یہ رہا سلیمان ندوی۔ سید سلیمان ندوی کی پیدائش 22 نومبر 1884 کو بہار کے مردنم خیز بستی دسنا، جو اب نالندہ ضلع میں ہے، وہیں پر ان کی پیدائش ہوئی تھی، ٹھیک۔ تو کہاں ہوئی تھی؟ دسنا میں، جو کہ ابھی نالندہ ضلع میں ہے، مردنم خیز بستی ہے، وہیں پہ ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ کب؟ 22 نومبر 1984 کو۔ ان کے والد کا نام حکیم سید ابو الحسن تھا۔ ان کی ابتدائی تعلیم گاؤں اور آس پاس کے متعدد بستی کے علماء سے حاصل ہوئی۔ پھر آگے کی تعلیم کے لیے پھلواری شریف پٹنہ میں ہے، پھلواری شریف اور مدرسہ امدادیہ دربھنگا میں داخل ہوئے۔ یہ کون پھلواری شریف یار؟ اچھا کوئی بات نہیں، پھلواری شریف ایک پٹنہ میں بھی ہے، تو ان کا دربھنگا میں داخلہ لیے، اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے تمنا نے 1901 میں دارالعلوم ندویت العلماء پہنچے، جہاں شبلی نمالی جیسے شخصیت سے ملاقات ہوئی۔ یہ جیسے کر دے رہے ملاقات ہوئی۔ ان کا پہلا افسانہ دیکھیے، ان کا پہلا مضمون کا نام خاتون کی تعلیم ہے، جو پٹنہ کے رسالہ الپنچ سے شائع ہوا تھا۔ دیکھیے، یہ آپ یاد رکھیے گا کہ جو پہلا افسانہ کیا ہے، پہلا مضمون کیا ہے، اور یہ کہاں سے شائع ہوا تھا، یہ بھی یاد رکھیے گا، پٹنہ رسالہ الپنچ سے شائع ہوا تھا۔ اسی سال لاہور منہزن میں ان کا ایک مضمون آخر وقت، یہ بھی ان کا مضمون ہے، شائع ہوا، اور آخر وقت شائع ہوا، اور 1903 عیسوی میں ان کے اشعار، نظمیں اور غزلیں بھی شائع ہونے لگے، ٹھیک۔ 1906 میں، یہ 6 ہے، 1906 میں رسالہ الندویہ کے ادارات بھی سلیمان ندوی کے تحویل میں آ گئیں، اور پھر 1913 کو مولانا ابوالکلام کا اخبار الحال سے وابستہ ہو گئے۔ دیکھیے، الحال یہ مولانا ابوالکلام کا اخبار ہے، ان سے بھی وابستہ ہو گئے تھے۔ یہ الحال یہی ایک اخبار ہے جو آزادی کے ٹائم بہت ہی مدد کی تھی۔ خیر، اس کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے جب مولانا ابوالکلام ہے نا، اس کے آگے چیپٹر میں ہے مولانا ابوالکلام کے بارے میں، تو ہم جانیں گے، ٹھیک۔ وابستہ ہو گئی، لیکن اسی بیچ شبلی کی موت ہو گئی، شبلی نعمانی جو تھے ان کی موت ہو گئی۔
इसी बीच शिबली की मौत हो गई। ये अरबी अदब, इस्लामियत, तारीख, सवानह, अदबियात और तरतीब व तदबीन उनके ख़ास मैदान है। ठीक, उनके ख़ास मैदान है, ये इसमें मतलब महारत हासिल किए हुए हैं। उनका उर्दू ज़ुबान से मज़ामीन ख़ास तौर पर नक़ूश सुलेमानी, हमारी ज़ुबान का नाम, ये हमारी है, हमारी ये कुछ नहीं है, हमारी ज़ुबान का नाम, मज़ामीन सुलेमान और मुलाकात सुलेमान शामिल है। ठीक, उन्होंने शिबली नुमाली की हयात पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम हयात शिबली है। ये हयात शिबली है। देखिए, ये एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है कि उन्होंने जो शिबली नुमाली की हयात पर किताब लिखा उसका नाम क्या है, तो हयात शिबली। तो मतलब इजी बात है यार, शिबली की हयात पर लिखा गया तो हयात शिबली, जो आठ जिल्दों में मुरतब है। 8 जिल्दों में है। कितने जिल्दों में है? 8 जिल्दों में मुरतब है। मुरतब करके शाये किया। सिदरतुल मुंतहा की जिल्द अव्वल ही शिबली मुकम्मल कर सके थे। जो उनके ये शिबली जो थे ना, ये उनके उस्ताद थे शायद। हाँ, ये 8 ही जिल्दों में सीरतुल नबी, सॉरी ये सीरतुल मुंतहा में पढ़ दिया हूँ, ये सीरतुल नबी है। सीरतुल नबी 8 जिल्दों में ये लिखे थे। ठीक, और मुकम्मल कर सके थे। लेकिन सुलेमान नदवी ने इसे 5 जिल्दों में लिखकर अपने उस्ताद की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी। ये जो आखिरी ख्वाहिश थी उनकी उस्ताद की शिबली की कि हम सीरतुल नबी लिखे, तो वो नहीं लिख सके और लिखने से पहले ही, पूरा मुकम्मल होने से पहले उनका इंतकाल हो गया। तो उनके जो शागिर्द थे ये सुलेमान नदवी, उन्हीं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सुलेमान नदवी। तो इन्होंने और लिखा आगे और उनकी ख्वाहिश को पूरी कर दी। अरब हिंद के ताल्लुक से अरबों के जहाज रानी, अरबों की जहाज रानी सीरत आयशा, हय्याम और रहमत आलम बहुत मशहूर है। उनके ये जो अरब और हिंदू के ताल्लुक से ये किताब जो लिखे हैं ये बहुत ही मशहूर है। अरब के जहाज रानी सीरत आयशा, हय्याम और रहमत आलम, ये अरब और हिंद के ताल्लुक से लिखी हुई है किताब। ठीक, 23 नवंबर 1953 को मुख्तसर अलालत मतलब बीमारी, मुख्तसर मतलब छोटी सी बीमारी के बाद कराची में इंतकाल हो गया। इनका इंतकाल कहाँ हुआ? कराची में। ठीक, और पैदा कहाँ हुए थे? पैदा हुए थे ये नालंदा जिला के दसना गांव में पैदा हुए थे। ठीक, और इनका इंतकाल हो गया। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ इन्हीं की तख्लीक है। ये जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सुलेमान नदवी का ही लिखा हुआ है, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं इस नज़म को, मज़मून को। ये देखिए, ये है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नए तहक़ीक़। ये एक मज़मून है जिसके मुसन्निफ़ सुलेमान नदवी हैं। और चलिए हम पढ़ते हैं इसको। पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है? लोग अपने अपने तजुर्बा और आदत के मुताबिक इसके कई जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मेरा ख़याल है वही अक्सरों का है, यानी यह कि खाना में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना नाश्ता है। सुबह सवेरे उठकर मुंह में कुछ पड़ जाने से सारे दिन के लिए धारस हो जाती है। ठीक, यह अजीब बात है कि नाश्ता के लिए अक्सर ज़ुबानों में भूख तोड़ने की असलाह बन गई है। अक्सर भाषा ऐसी है जो लोग कहते हैं कि यार यही तो एक भूख तोड़ने की असलाह बन गई है अब।
मैं 2 ज़बानें जानता हूँ। देखिए ये पूछा गया सवाल है कि सुलेमान नदवी यानी कि जो मुसन्निफ़ है वो कितने ज़ुबान जानता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं 2 ज़बानें जानता हूँ। ये मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि मैं 2 ज़बानें जानता हूँ, एक पूरब और एक पश्चिम की, यानी अरबी और अंग्रेज़ी 2 ज़बानें जानते हैं। यही बात है, दोनों में यही बात है, दोनों में ये जो नाश्ता का मतलब यही बात है। ठीक, इससे समझता हूँ कि और ज़बानों में भी कुछ ऐसा ही हाल होगा। अरबी में उसको फतूर कहते हैं, किसको, नाश्ता को अरबी में क्या कहते हैं, फितूर कहते हैं। इसी से मुसलमानों का इफ्तार निकला है। अब इसी जो है यही वर्ड है, इसी से मुसलमानों का जो है इफ्तार जो नाम का लफ्ज़ है ये इसी से निकला है। ठीक, और जिससे इफ्तार करे उसी को इफ्तारी कहते हैं। यानी कि जो हम लोग नाश्ता करते हैं उसको इफ्तारी कह सकते हैं, क्योंकि उससे हम लोग पहले खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि इसी को तो कहते हैं अरबी में फितूर, और फितूर से ही निकला है इफ्तार, और इससे और जो हम खाते हैं इफ्तार के वक्त उसको इफ्तारी कहते हैं। ठीक, यह फितूर के माना तोड़ने के हैं। फितूर का मतलब होता है तोड़ने के, यानी रोज़ा के भूख को तोड़ना, रोज़ा को भूख को तोड़ने का मतलब फितूर। ठीक, हमारा नाश्ता भी इसी किस्म का लफ्ज़ है। फारसी में इसके माना उस भूख के है जिसने सुबह से कुछ न खाया हो। फारसी में इसका माना क्या है, फितूर का माना कि उस भूख का जो सुबह से कुछ नहीं खाया हो उसी को कहते हैं फितूर फारसी में। ठीक, मुअद्दल फसलन व बरहानन काते, ये फारसी का लफ्ज़ है। अब देखें कि यह नाम तो उस आदमी का नाम था जिसके मुंह में सुबह से कुछ न पड़ा हो, और अब हम उस चीज़ को कहते हैं जो सुबह सवेरे ऐसे आदमी को खिला दी जाए, यानी शख्स के बजाय चीज़ का नाम हो गया। ठीक, ये चीज़ का नाम हो गया कि इफ्तारी। और अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। इस माना में एक और लफ्ज़ है निहार, ये भी, इसको भी निहार भी कहते हैं, नाश्ता ही को निहार कहते हैं। ठीक, आप बोलते हैं कि निहारमु, यह भी फारसी है, मगर देखिए कि फारसी हिंदुस्तानी से ऐसा मिल गया है, ऐसा मिल गया है कि गोया हिंदुस्तानी ही है। इसके असलियत नहार, इसका असलियत क्या है, नहार। नाम का मतलब नफ़ी के लिए है, और हार का मतलब गज़ा, हार का माना है गज़ा मतलब खाना। नहार यानी नहीं खाया हुआ। बरहानन काते, इसको फारसी में कहते हैं, ये फारसी का लफ्ज़ है। ठीक, अब इससे नहारी यानी नहारी तैयार हुई है। नहार से ही निहारी मतलब जैसे कि इफ्तार से इफ्तारी तैयार हुई खाने के लिए, उसी तरह नहार से मतलब नहीं खाया हुआ, निहारी तैयार हुई, जो सुबह को निहार मुँह खाई जाए। और लखनऊ और दिल्ली में यह ख़ास चीज़ हो गई है जो बाज़ारों में पकी पकाई बहुत चटपटी मिलती है। नहार से आहार याद आता है, नहार से क्या याद आता है, आहार। ठीक, नहार से आहार याद आता है। आहार आटे के उस लेई को कहते हैं जो कागज़ और कपड़े पर इसलिए चढ़ाई जाती है कि वह मजबूत हो।
मजबूत होती है, मजबूत है तो मजबूत हो जाए। आप सुन चुके हैं कि आहार ग़िज़ा को कहते हैं। आहार मतलब खाना किसको कहते हैं? ग़िज़ा को कहते हैं, जो बदन की तक़वियत का बाइस होती है। इससे इसलिए को इसलिए लेई को भी कहने लगे, जो कागज और कपड़े के कुव्वत को बढ़ा देती है। ठीक, इसलिए इससे जो उस लेई जो है लेई है, उसी को कहते हैं जो कि कागज की कुव्वत को बढ़ा देते हैं। कागज और कपड़े में लगा देने पर देखते नहीं है एकदम चिमड़ा टाइट एकदम हो जाता है, मतलब कठोर, और तो ये उसकी ताकत को बढ़ा देता है, तो उसे ही लेई कहते हैं। ठीक, रोजमर्रा के खानों में कलिया ये कोई खाना का नाम है, मालूम नहीं हमको। कोरमा बहुत आम चीज है। कलिया की शक्ल अरबी है, माना अरबी नहीं है। इसकी शक्ल लग रहा है ये अरबी है, लेकिन ये इसका माना अरबी नहीं है। कलई की अरबी शक्ल कलिया हो सकती है। अरबी में कलई भूनने को कहते हैं। इससे कलिया बन सकता है और भुने हुए गोश्त को कह सकते हैं। भुने हुए गोश्त को क्या कह सकते हैं? कलिया। ठीक, हमारा जुबान में कलिया इस शोरबादार गोश्त को कहते हैं। शोरबादार मतलब सिरवा वाला। ठीक, शोरबादार गोश्त को कहते हैं जिसमें कोई तरकारी पड़ी हो, जिसके अंदर तरकारी भी हो, उसी को कहते हैं कलिया। ठीक, बल्कि इसी तरकारी के कलिया कहने लगे हैं। कोरमा तो तुर्की मालूम होता है। तो कोरमा जो है ये तुर्की, मतलब तुर्की जो भाषा है तुर्की, वो मालूम होता है। ठीक, तो और भी है, आगे देखते हैं आगे क्या है। हमारी जुबान में एक लफ्ज मजमून की सुर्खी यानी उन्वान है। देखिए, सुर्खी का मतलब होता है, जैसे कि इस जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना मजमून, इसका सुर्खी क्या है हम बताना चाहेंगे। ये इसका सुर्खी है, ये सुर्खी है। ठीक, तो यहाँ पर ये सुर्खी का मतलब अभी यहाँ पे बताया जाएगा कि सुर्खी क्या है। पहले ना सुर्खी को लाल रंग के पेन से लिखा जाता था ताकि वो दिखाई दे, हाईलाइट हो। ठीक, जैसे कि देखिए हम हाईलाइट किए हुए, लेकिन पहले ज़माने में लाल रंग से ही लिखा जाता था ताकि ये सुर्खी दिखाई दे। ठीक, तो इसी को सुर्खी यहाँ पर अभी बताया जाएगा, हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक, सुर्खी यानी उन्वान है। देखिए तो यह स्याही से सुर्ख कैसे बन गया। स्याही से सुर्ख कैसे बन गया? बात यह है कि पहले ज़माने में कलमी किताबों में बाब और उन्वान के इम्तियाज़ के लिए सुर्खी से लिखा करते थे। देखिए, पहले ज़माने में किताब को तो कलम से लिखते थे और उन्वान को लिखने के लिए लाल रंग की कलम का इस्तेमाल करते थे, जिसे सुर्खी कहते थे। ठीक, सुर्ख कलर से लिखा गया इसीलिए सुर्खी। अब हमारी ज़माने में जब छापा इजाद हुआ तो खुद बाब के या मजमून के उन्वान को सुर्खी कहने लगे। ठीक, बाब या जो पेज नंबर है या यहाँ पर देख रहे हैं अभी हम आपको दिखाए हैं, जैसे कि वो सुर्खी कहने लगे। चाहे आप उसको स्याही ही से लिखें, चाहे आप उसको स्याही से लिखें या आप छपवाएं, उसको सुर्खी ही कह देंगे। अब देखिए अहदी, देखिए ये अहदी है, अहदी है, और एक आगे है अहदी। ठीक, अहदी के माना हमारी जुबान में सुस्त और काहिल के है। काहिल मतलब जो काम नहीं करता हो उसको काहिल कहते हैं। ठीक, मगर उन सुस्त काहिलों की पैदावार तारीखी है। अहदी है। ठीक, देखिए अहदी और अहदी है। अहदी के माना अरबी में एक है। ठीक, अरबी में क्या है? इसका माना एक है।
इसको याद रखिएगा। इस पूछता है अहदी और अहदी में अंतर बताए, ठीक। तो अहदी का माना है एक अरबी में, और सिपाही जो फौज से अलग अकेला ड्यूटी की खिदमत पर मामूर रहता था। अकबर ने उसको अहदी यानी अकेला का लक़ब बख्शा है, ठीक। तो देखिए राजा के दरबार में एक अकेला ही एक नौकर रहा करता था उसके खिदमत में, तो उसको अहदी मतलब अकेला। देखिए अहदी, अहदी मतलब अकेला होता है, और अहदी मतलब होता है क्या, अभी हम बताएं आपको। अहदी मतलब होता है, कहा गया अरबी में अहदी को, अहदी का माना अरबी में एक है, और अहदी मतलब अकेला, और अहदी मतलब एक, ठीक, का लक़ब बख्शा है। यह अहदी खाते थे और ड्यूटी पर परे रहते थे। मतलब क्या कहें, एक अहदी का माना ये होता है ना काहिल, सच में ये काहिल थे, मतलब खाते थे और बस परे रहते थे और कुछ नहीं। बोले ना जितना का काम नहीं करता उसको काहिल कहते। कोई काम काज का उससे मुतालिक न था, मुतलक न था। इसलिए ज़ुबान खल्क ने उसको सुस्त व काहिल के मानों में कह कर पुकारा। ज़ुबान खल्क को कौन रोक सकता है। अब जो ज़ुबान खल्क मतलब ज़ुबान को जो पैदा करने वाला, खल्क मतलब पैदा करने वाला, ठीक, और ज़ुबान मतलब भाषा, ठीक। तो जो पैदा करने वाला है उसको मतलब अचानक से हम लोग किसी इंसान को अचानक ही से नहीं कुछ बोल देते हैं कि यार काम नहीं करता है, तो उसको क्या क्या न जाने बोल देते हैं। तो वो अचानक से बोल दिए काहिल, मतलब तुम लोग एकदम काहिल ही हो यार, काम नहीं करते, ठीक। वही कहना चाहता है यहाँ पर कि जुबान को कौन रोक सकता है, जुबान से कुछ भी निकल सकता है, यही ना बात है। हमारी जुबान में एक लफ्ज़ कलई, देखिए अभी कलई के माना हम पढ़ेंगे। हमारी जुबान में एक लफ्ज़ कलई है, आइए इसकी भी कलई खोले। कलई मतलब कलई एक लफ्ज़ है, इसका कलई खोले मतलब इसका जो बारे में है खोलना, उसी को कलई खोले। हम लिखते गो कलई है, मगर बोलते कलई है। कलई लिखते हैं, ऐन इसमें देखिए ऐन आ रहा है, और इसमें इसको पढ़ते हैं क्या, कलई, ठीक। इसमें ऐन नहीं पढ़ते हैं, ठीक। हमारी ज़ुबान में इसके माना सफेदी और सफाई के है। देखिए ये सफाई है, यहाँ पे मिट चुका है, हम आपको यहाँ पर कर दे रहे हैं। सफाई के है, सफाई के है। बर्तनों पर कलई की जाती है और मकानों पर कलई फेरी जाती है। देखिए कलई करना, कलई फेरना, मतलब पेंट करने को ही कलई कहते हैं, ठीक। पेंट चढ़ाना, कलई करना, ठीक। यह लफ्ज़ को पुरानी अरबी का नहीं, मगर फिर भी अरबी नातों में मिलता है। कलई अरबी में लसान और उससे फारसी में मुआइल फजला रांगे को कहते हैं। रांगा आप देखे होंगे शायद, रांगे को कहते हैं, ठीक। मगर रांगे को कलई क्यों कहते हैं। लिसानुल अरब का बयान है कि कला एक कान का नाम है जिससे रांगे की बेहतरीन किस्म निकलती थी, इसलिए उसकी तरफ निस्बत करके अच्छे रांगे को कलई कहते हैं, ठीक। और चूंकि इसी रांगे से तांबे के बर्तनों में सफेदी फेरी जाती है मतलब पेंट किया जाता है, ठीक। कलई करना मतलब पेंट करना, ठीक। इसलिए उसको कलई करना कहने लगे। फिर जो चूने से भी अगर मकानों पर सफेदी फेरना मतलब कलई करना, ठीक। सफेदी फेरी गई तो उसे भी कलई फेरना कह दिया।
ہماری زبان میں اس استعمال سے یہ معنی پیدا ہوئے کہ کسی داغ دھبے یا کسی کے عجیب عیب کو اگر چھپایا جائے تو وہ اس پر قلعی پھیرنا ہوا۔ دیکھیے عربی میں اگر کسی کے عیب کو چھپاتے ہیں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس پر ہم قلعی پھیر دیے، یعنی کہ ہم اس کے عیب کو چھپا دیے، مطلب وہ سادہ، مطلب جیسے سادہ پنا ہوتا ہے جس کے اندر کچھ نہیں لکھا ہوتا، اسی طرح اس کے عیب کچھ ہی نہیں ہے، وہ سادہ ہے، ٹھیک۔ اور اگر اس داغ دھبے اور عیب کو ظاہر کرنا ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں قلعی کھولنا۔ دیکھیے ہم قلعی کو مٹا رہے ہیں، کھول رہے ہیں، ٹھیک، اس کے عیب کو کھول رہے ہیں، ٹھیک، اسی کو کہتے ہیں قلعی کھولنا۔ تو دیکھیے یہاں پر ہمارا چیپٹر سماپت ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا، یہ اس میں اگر سمجھ میں آیا ہو تو آپ لوگ کمنٹ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا، اور اگر نہیں سمجھ میں آیا ہے تو آپ اس کا جو سوال جواب ہے، جب ہم اس کا سوال جواب لگائیں گے تو آپ کو مطلب 100% میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ چیپٹر آپ کو پورے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اور مجھے تو یہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، کیونکہ ہم سارے جتنے الفاظ تھے اس سب کو ہم آپ کو بتانے کی کوشش کی ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ویڈیو آدھے گھنٹے کی ہونے والی ہے، تو ہم زیادہ نہیں چاہیں گے کہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو، اسی لیے آج کے لیے اتنا ہی۔ تو چلیے ختم کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو ویڈیو یہ پسند آئی ہو تو لائک کریں، میرے ویڈیو کو، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، تاکہ آپ کے بھی دوست ہمارے اس چینل سے جڑے اور پڑھیں، اور پڑھ کر انشاءاللہ ایگزام میں، امتحان میں 95+ مطلب نمبر تو آ ہی جائے گا۔ اگر ہم پڑھا دیے، اگر وہ اچھے سے پڑھ لیا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ 95+ لا دے گا، ٹھیک ہے۔ تو بنے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ، جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے ہماری ساری ویڈیو کو۔ السلام علیکم۔